It is our third lecture on chemical thermodynamics. Our next topic is thermochemistry. Thermochemistry deals with enthalpy changes in chemical reactions. Definition thermochemistry की, it deals with enthalpy changes in chemical reactions. Now, enthalpy of chemical reactions, it is represented by delta HR. It R for reaction. Now, consider this reaction A plus B. These two are reactants and these two are products. These are the coefficients or number of mole. Number of mole of reactant A, number of mole of reactant B, number of mole of reactant C, number of mole of product C and number of mole of product D. या कोएफिशिएंट्स बैलेंस करने के लिए जो हम यहाँ लगाते हैं ना नंबर, इसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट्स. Now the enthalpy change for this reaction delta H is equal to C enthalpy of reactant C plus enthalpy of reactant D, and it is multiplied by its coefficient minus a enthalpy of reactant A plus enthalpy of reactant B. इसका मतलब क्या है? डेल्टा H is equal to summation of enthalpies of products minus summation of enthalpies of reactants. Therefore, enthalpy of reaction is defined as the enthalpy of a chemical reaction is the difference between sum of enthalpies of products and that of reactants with each substance in definite physical state and their amounts, or it is also known as moles, being represented by coefficients in the balanced equation of the reaction. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. दो डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, एक तो थर्मोकेमिस्ट्री की है और दूसरी एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये दोनों डेफिनेशन. अब इफ summation of enthalpies of products is greater than summation of enthalpies of reactants, then delta H is positive. It means that the reaction is endothermic. लास्ट लेक्चर में हमने देखा पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बारे में. इफ summation of enthalpies of products is less than summation of enthalpies of reactants, the enthalpy of reaction is negative. Delta H is negative. It means that the reaction is exothermic. These are the examples for it is for formation of NO and it is for decomposition of potassium chlorate. N2 is combined with O2, there is formation of NO नाइट्रिक ऑक्साइड. ये सब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये 2 बैलेंस करने के लिए है, इसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट. डेल्टा H इज इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू इज इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. It is for decomposition of potassium chlorate. It decomposes into KCl and O2. Delta H for this reaction is minus 78 kilojoule. Negative sign है, it means that the reaction is exothermic. Now, standard enthalpy of reaction. The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change accompanying the reaction when the reactants and products involved are in their standard states. ये जो सर्कल, ये जो ज़ीरो जैसा ये आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर है, इट इज़ फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन. इसको पढ़ेंगे हम डेल्टा एच आर ज़ीरो, डेल्टा एच ज़ीरो ऐसा पढ़ेंगे हम. नाउ द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज़ द फॉर्म इन विच द सब्सटेंस इज़ मोस्ट स्टेबल एट प्रेशर ऑफ 1 bar and at temperature of 298 Kelvin. That substance is known as standard state of a substance when pressure is of 1 bar and the temperature is 298 Kelvin. Standard states of certain elements and compounds are H2 in gaseous state, Hg mercury in liquid state, sodium in solid state, carbon in graphite, H2O in liquid state, and calcium carbonate in solid state. These are the standard states which are
at pressure of 1 bar and at temperature of 298 Kelvin. इनको कहा जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट्स, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स. Now thermochemical equation. It is the balanced chemical equation in which the enthalpy change, physical states and the number of moles of reactants and products have been specified. इस इक्वेशन को कहा जाएगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन. इसमें क्या क्या बताना है आपको? एंथैल्पी चेंज. ये देखिए, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज़ द कंबशन ऑफ मीथेन एंड वी विल गेट CO2 and H2O. अब और क्या दिखाना है इसमें? फिजिकल स्टेट्स. फिजिकल स्टेट मतलब द स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट विच इज़ स्टेबल एट 1 बार एंड 298 केल्विन. मीथेन का स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट है एट दिस कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. O2 का गैसियस स्टेट है, CO2 इन गैसियस स्टेट, H2O इन लिक्विड स्टेट. ये फिजिकल स्टेट्स दिखाना कंपलसरी है. कभी कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन हमको मिलता है कि अगर फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है तो इक्वेशन लिखने की मार्क नहीं देना है. तो फिजिकल स्टेट लिखना कंपलसरी है. इट इज़ अबाउट फिजिकल स्टेट्स एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इट मीन्स दैट द रिएक्शन शुड बी इन बैलेंस्ड फॉर्म. ये रिएक्शन बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए. ठीक है. सो इट इज़ कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन. पूरा यहाँ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और फिर जो चेंज इन एंथैल्पी है विथ यूनिट. It is compulsory. It is complete thermochemical equation. It is the way of writing thermochemical equation. क्या क्या दिखाना है आपको? एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जब आप ये सब स्पेसिफाई करेंगे एट दैट टाइम दैट इक्वेशन इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF0. इसको पढ़ेंगे. डेल्टा HF0 व्हाट इज़ द डेफिनेशन? 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये. इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements in their standard states. For example, this reaction is for formation of H2O. हाँ, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका 1 मोल होना चाहिए. 1 मोल. 1 मोल फॉर H2O, 1 मोल फॉर CH4 इन दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल डेफिनेशन में ही है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड. जो बन रहा है इसका मतलब राइट साइड पे जो प्रोडक्ट है इट शुड बी 1 मोल. अब फिर जो बैलेंस करना है हमको, ये हम रिएक्टेंट साइड में ये सब कोएफिशिएंट्स लगाएंगे. H2 in gaseous state plus O2 in gaseous state, we will get H2O in liquid state. ठीक है. ये जो O2 है देखिए, इट इज़ 1/2. ऑक्सीजन का आइटम 1 है तो ये 1 करने के लिए हमको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा. देन एट दैट टाइम वी विल गेट 1 ऑक्सीजन. फॉर दिस रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -286 किलो जूल. यहाँ पे लगा देंगे हम पर मोल. 1 मोल बन रहे ना, 1 मोल, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं पर मोल. As it is exothermic reaction, therefore it is negative sign. Now this reaction is for formation of methane gas. कार्बन का जो कार्बन there are many allotropes of कार्बन. So कार्बन का जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट it is the standard state of carbon. Therefore it combines with 2 moles of H2 gas. There is formation of 1 mole of methane. Delta HF0 is equal to -74.8. यहाँ भी हम लिख सकते हैं पर मोल. आगे हम ऐड कर सकते हैं पर मोल. फॉर्मेशन अगर जब रहेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका 1 मोल रहना चाहिए. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HC0. The standard enthalpy of combustion of substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized. To combust means to burn. जो burning का process है it is in presence of oxygen and reaction with oxygen it is known as oxidation reaction according to classical concept. Therefore this reaction is for combustion of 1 mole of acetylene.
जिसका कंबशन हो रहा है इट शुड बी 1 मोल, ये 1 मोल रहना चाहिए। और फिर ये सब कोएफिशिएंट्स हम लगाएंगे फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन। C2H2 in gaseous state plus O2 in gaseous state, we will get CO2 in gaseous state plus H2O in liquid state. For this reaction, standard enthalpy of combustion is equal to -1300 किलोजूल। यहाँ पर मोल हम बता सकते हैं, क्यों? Because this reaction is for combustion of 1 mole of acetylene. ओके, एक मार्क का क्वेश्चन बनता है ये, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये सब वर्ड्स आना कंपलसरी है। स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ भी स्टैंडर्ड आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी? द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecules to produce gaseous atoms and or radicals is called bond enthalpy, ठीक है। now for example H2 gas, we will get 2 hydrogen atoms in gaseous state. For this reaction, enthalpy of reaction is equal to 436.4 kilojoule. ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो हियर बॉन्ड ब्रेक्स, देयरफॉर डेल्टा H is equal to positive. Positive means the process is endothermic process, as it is this reaction is for 1 mole, therefore we can write here 1 mole also, or simply you can write kilojoule. Now in H2 molecule, in 1 molecule of hydrogen, 2 hydrogen atoms are present, therefore it is diatomic molecule. Bond dissociation enthalpy, it is the bond enthalpy in case of diatomic molecule. In case of polyatomic molecules, average bond enthalpy is taken into consideration. For example, H2O. In H2O, 3 atoms are present, therefore it is triatomic molecule, or you can say also polyatomic molecule. जब इस मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग होगी, डिसोसिएशन होगा, वी विल गेट 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। फॉर दिस प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 927 किलोजूल, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इन 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल 2 OH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एंगुलर शेप रहेगा इसका, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपने देखा भी है, इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ भी किया है। 2 OH bonds are present, therefore the bonds in H2O are broken in successive steps. 2 स्टेप में, 2 बॉन्ड है ना, ये 2 स्टेप में देखो इसकी ब्रेकिंग हो रही है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वी विल गेट द फ्रेगमेंट्स लाइक दिस, OH in gaseous state plus H in gaseous state. For this step delta H is equal to 499 किलोजूल। अब यहाँ पे भी इनको भी अलग होना है, देयरफॉर फॉर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH इन गैसेस स्टेट, formation of oxygen in gaseous state plus hydrogen in gaseous state. For this reaction change in enthalpy is equal to 428 kilojoule. जब हम इन दोनों दोनों स्टेप्स को, दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, we will get H2O in gaseous state. There is formation of oxygen in gaseous state and 2 hydrogen atoms in gaseous state. 3 atoms are separated. For this process delta H is equal to 927 किलोजूल। इन वैल्यूज़ को भी हमको ऐड करना है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा इक्वेशंस का, तो डेल्टा H को उसमें आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसा ऑपरेशन हम इन इक्वेशंस पे करेंगे, वैसा ऑपरेशन हमको इन वैल्यूज़ पर भी करना रहेगा। For polyatomic molecules, the average bond enthalpy of a particular bond would be considered. As here 2 bonds are present, 2 bond enthalpies are present, therefore this value is divided by 2 and we will get 463.5 kilojoule per mole. Therefore, and this value is average bond enthalpy. ओके, लास्ट टाइम अभी हमने देखा जो CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड एंथैल्पी हमको मिलता है 1660 किलोजूल।
जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने मतलब इट इज़ डिवाइडेड बाय 4, और फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर CH बॉन्ड। अब ये जो वैल्यू आई है, ये एवरेज, दिस वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस टू वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या कंसीडर करना है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेना है, एंड इट इज़ इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द बॉन्ड एंथैल्पी। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे तो जो रिएक्टेंट साइड है उधर बॉन्ड ब्रेक होगा, जो प्रोडक्ट साइड है उधर बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है दैट इज़ नेगेटिव, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट इज़ पॉजिटिव। जब हम इक्वेशन रीअरेंज करके लिखेंगे हमको मिलेगा डेल्टा H0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जब हमको प्रॉब्लम आएगा तो हमको यहाँ पे पहले लिखना रहेगा रिएक्टेंट बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना रहेगा प्रोडक्ट बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क का, 1 मार्क स्टेटमेंट की और 1 मार्क एप्लीकेशन की, ऐसे 2 मार्क का, या 1 मार्क स्टेटमेंट की 1 मार्क एग्जाम्पल लिखने की, ये ऐसा, या सिर्फ 1 मार्क का अगर आया तो सिर्फ स्टेटमेंट के लिए, सिर्फ एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आया तो इट इज़ फॉर 1 मार्क। नाउ व्हाट इज दिस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। द लॉ स्टेट्स दैट overall the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. To determine the overall equation of the reaction, reactants and products in the individual steps are added or subtracted like algebraic entities. For example, consider the formation of NH3 molecule. इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, हर स्टेप का हमको चेंज इन एंथैल्पी हमको मिल रहा है। फॉर फर्स्ट स्टेप इट इज़ 95.4 किलो जूल, फॉर सेकंड स्टेप इट इज़ -187.6 किलो जूल। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे वी विल गेट 3H2 in gaseous state plus N2 in gaseous state gives 2NH3 in gaseous state. Delta H0 for this reaction is equal to -92.2 किलोजूल। अगर 1 मोल के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे फॉर 1 मोल तो इस इक्वेशन को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे 1 लेने के लिए हमको इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिवाइड करेंगे, और जब 1 मोल फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे तो फिर उस वक्त हम यहाँ लगाएंगे पर मोल। हियर नाउ देयर इज़ नो नीड टू राइट पर मोल बिकॉज हियर NH3 इज़ ऑब्टेन इन 2 मोल्स। ठीक है, सो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर ओवरऑल रिएक्शन -92.2 किलो जूल। सो इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ हेस लॉ एंड इट इज़, ये एग्जाम्पल हो गया। हाँ, इट इज़ फॉर 1 मार्क, इट इज़ फॉर 1 मार्क, हो गया 2 मार्क। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ हैज़ बीन यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शंस विद देयर एंथैल्पीज बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। जिन रिएक्शंस के एंथैल्पीज एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं हो सकते हैं उन रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल।